Dear student, good evening. I think we have already discussed during last session. Now we will be going to talk about application part of time value of money. We have already discussed the present value, future value, present value for annuity, future value for annuity. You have also calculated them very effectively on your, through your, I mean, calculator. I told you how to go for future value, how to get the present value. If there is single cash flow, multiple cash flow, so on and so forth. So now let us apply it in for different prospects. Like one is present value of perpetuity. Perpetuity means forever. You must be wondering who has and how has any colleges has uh, created if the student is getting highest in accountancy, they will get 500 rupees, or economics 1000 rupees, such kind of prizes. How it has been decided, how much money to be. Today also you must have seen a Nobel Prize, this much amount has been paid to the concerned person. How it comes? So boss, for that there is a value of perpetuity. A certain amount of money, if you will putting it into the bank, forever a fixed amount of installment you can withdraw. And that's very simple. Whatever the returns you want and whatever the way of, rate of interest is there in the market, if you'll put it, automatically it will give you the value of perpetuity. Suppose if you want 10,000 rupees uh, every year for a particular price, and today's market rate of interest is 7%. तो अब क्या करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 7% कर देंगे. इतना पैसा अगर आपने बैंक को दे दिया, सो बैंक आपको ये मनी कभी रिटर्न नहीं करेगी, बट एवरी ईयर आपको 10,000 रुपीज रिफंड करेगी, एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. एनी डाउट? So say for example, being a principal of college, if you want to establish a scholarship of 5,000 to the meritorious student, present value of investment yield is 5,000 for the perpetuity. Perpetuity means forever. Discounted rate is 10%. How much amount to be invested? Tell me. अभी मैंने आपको बताया था कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे? 5,000 divide by 10%. So if I will invest this 50,000, so from bank I will get every year 5,000. Any doubt for this value of perpetuity? देखो यही आया ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. No, sir. Okay. Again, future value for regular annuity of 1,000, 12%, 10 years. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. 1 into future value of interest factor for annuity डाल दोगे, आ जाएगा वैल्यू. Yes or no? Yes, आया sir. ना? ये हम लोग अप्लाई किए हैं ये सारी चीजें. यही था ना? इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट कैश फ्लो है तो. ओके. Okay, if the borrower promised to pay 20,000 8 years from now, return of loan is 12,550. What will be the interest? वाला आपसे भी नहीं पूछेगा. अदरवाइज मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू के लिए यहाँ बोला था ना, वैसे इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आप इक्वल टू इंटरेस्ट करेंगे ना, आप डिटेल डालते जाओ, वो पूछेगा. ठीक है, नंबर्स डालते जाएंगे, आपको वैल्यू आते जाएगा. If the loan of 5 lakh to be repaid in 10 equal installment carries a 12% rate of interest, what will be the installment per? तो ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है.
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यस और नो? 12 years 12% 10 years से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, आ sir. जाएगा अपने को वैल्यू। Yes, sir. तो ऐसे चीजें आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं इसी कंटेक्स्ट में, देखता हूं आपको आंसर आता है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हाफ ईयरली रहेगा, ये भी आपने प्रैक्टिस किया है ना? अब मैं बोलता हूं कि एक बॉन्ड है, आईसीआईसीआई का बॉन्ड है, ठीक है ना, ऑफ रुपीज तो आईसीआईसीआई 10% बॉन्ड है विच इज फॉर 5 years, और अभी वो 99,000 में मिल रहा है। अपने को बॉन्ड परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। क्या करेंगे आप? टेल मी। देखो इसमें से क्या चीज आपको रिटर्न आने वाला है? व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स? वापस मुझे प्रेजेंट वैल्यू से देखो, मुझे दो चीज उसमें से आएगी। क्या आएगी? एक तो 10,000 रुपये आएगा हर एक साल, है ना, फॉर 5 years, है ना? मिलेगा कि नहीं 10,000 रुपया? हाँ, sir. प्लस मैच्योरिटी के टाइम और एक मिलेगा मुझे 1,00,000 रुपया। पांचवें साल में 1,00,000 भी मिलेगा ना मुझे। ये दो चीज मुझे इनफ्लो मिलेगा। अब वो चीज अगर, सॉरी, ये 99 मत करो, इसको लिखो 1,20,000 में दे रहा है तुमको। ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ बनाता है हम लोग, ठीक है ना? वो बोल रहा है कि भाई 5 साल के बाद हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे, ओके, और हर एक साल आपको 10,000 रुपया देंगे, और वो चीज आपको 1,20,000 अभी देना है। आप ये चीज को परचेज करोगे कि नहीं? मैं बोलता हूँ 95% पब्लिक परचेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करता है, भाई 1,20,000 दे रहे हैं और उसके रिटर्न में मुझे 1,50,000 मिल रहा है ना? हाँ सर। यस और नो? यस सर। अरे हाँ या ना?
हाँ सर। बट वो हाँ ये सर। ढूंढना भूल जाता है कि ये 1,05वें साल मिल रहा है, उसका आज वैल्यू क्या है एट द रेट ऑफ 7%। क्या है बताओ, 7% पे बताओ मुझे क्या वैल्यू आती है, क्विक। 100 डिवाइड बाय 107 इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आया, 934, हाँ बराबर। 0.934। सेकेंड ईयर का कितना आया, 873। 873 सर। ठीक है, फिर क्या आया, 816 816। फिर क्या आया, 762 762। फिर क्या आया, 712 712। ठीक है, और यही वैल्यू यहां भी रहेगा। हाँ सर। ₹71 लाख। समझा आप लोगों ने? यानी अगर ये चीज, ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है बेटा, ये प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, यानी उसका रियल वर्थ क्या है, रियल वर्थ है 1,12,170 रुपया, 1,12,000। इससे अगर एक पैसा ज्यादा भी आज वो मांग रहा है, आई बीइंग द इन्वेस्टर विल नेवर इन्वेस्ट। अभी आप समझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे हम लोग को हेल्प करता है इन एवरी वेज एंड मीन्स। यस और नो? यस सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि डिपॉजिट करोगे तो क्या रिटर्न आएगा, वेदर वो वाइबल है या नहीं है, एन्युटी क्या रहेगा, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बेस क्या है, इंटरेस्ट रेट फाइंडिंग इज नॉट योर प्रॉब्लम, अभी ये आपको नहीं आएगा। और फिर वो मैंने लास्ट के जो क्वेश्चंस आपको बताए थे, याद है, यहाँ दिया हुआ है आपको प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के सर। एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, जितना होता है उतना सॉल्व करो। तो नहीं समझेगा, यही है ना कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ये है, हाँ एनुअल सर। है, ये एक्सपेक्टेड है, मैच्योरिटी 5 इयर्स है, तुम उसका कितना पैसा देगा। वो डिवेंचर्स के लिए भी आता है, बॉन्ड के लिए भी आता है, लोन के लिए भी आता है, सब जगह यही लॉजिक अप्लाई करते हैं। गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस सर। So with this, your time value of money is over. Okay. Now after this ओके break, सर। जब भी आप रिज्वाइन करेंगे, हम लोग रेशियो चालू कर देंगे आज से ही। ओके, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये सब सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस करो, बहुत मजेदार है। और कुछ डाउट होता है फिर मुझे पूछो, सर यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। देयर माइट बी सम प्रिंटोग्राफिकल एरर इन आंसर्स आल्सो। जब आप मेरे से वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द even the question paper which has been uploaded on the website. चेक कर लो, मैंने एफएम के कर दिए, वेबसाइट पे जाओगे तो वो क्वेश्चन पेपर है। सर आप वो जो एमसीक्यूज के बना के रखने वाले थे, डाल दिया बेटा ना, ठीक है बना सर, के रख थैंक दिया, यू। ये क्या एमसीक्यूज डाले हुए, ये रहा आपका। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस आ गया ना, यहीं पे कहीं ना कहीं है, आप चेक करो आपको मिल जाएगा।
ठीक है सर, कर दिया, सारे कर दिए. थैंक यू। Thank you, Okay. sir. So now let us go for ratio after this break. Once you'll come, we'll start ratio as your topic. And kindly practice time value of money. ओके सर। Thank you, everyone. Take care. ये सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, प्रैक्टिस करो, अच्छा लगेगा.